بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب بھی نہانے جاتی اسی وقت میرا چچا زاد بھائی میرے کمرے میں آ جاتا، مجھے دیکھ کر مسکرا کر چلا جاتا۔ میں بچہ سمجھ کر کچھ نہ کہتی، لیکن مجھے شک ہو گیا کہ اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں نہانے جا رہی ہوں۔ ایک دن گھر پر کوئی نہیں تھا۔ اس دن میں باتھ روم گئی اور لائٹ بند کر کے کمرے میں چھپ گئی۔ جب میرے چچا زاد بھائی نے آ کر ایسی حرکت کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری زندگی کئی رازوں کے درمیان گھوم رہی تھی۔ میرے ساتھ زندگی میں ایسا کچھ ہوا تھا جو اگر کسی عام لڑکی کے ساتھ ہوتا تو وہ یقیناً پاگل ہو جاتی۔ ایک دفعہ میں اپنے کالج سے گھر آ رہی تھی کہ کسی نے میرے چہرے پر رومال رکھ کر مجھے بے ہوش کر دیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے تو میں اس واقعے کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری زندگی کی سیاہ حقیقتوں میں ایک سیاہ واقعہ تھا یہ، جس نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں جب اپنے سسرال شادی ہو کر آئی تو میرے شوہر گھر میں سب سے بڑے تھے اور دیکھنے میں واجبی سے شکل کے تھے۔ مجھے میرے شوہر پسند نہیں تھے۔ جب میں نے سسرال میں قدم رکھا اور مجھے سب سے ملوایا گیا تو مجھے حیرت کا زبردست جھٹکا لگا کہ سوائے میرے شوہر کے سارے ہی گھر والے گورے چٹے اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ مجھے ان سب کو دیکھ کر اتنا غصہ آیا کہ دل کیا زور زور سے روم۔ کیا میری غلطی اتنی بڑی تھی کہ مجھے ایسا شوہر ملتا؟ مجھے میری ماں پر بہت غصہ آنے لگا، اور جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو میں نے ناراضگی اظہار کے طور پر ان سے منہ موڑ لیا۔ ایک دم میں اپنے کسی کام میں مصروف تھی کہ اندر سے آتی عجیب و غریب آواز پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس وقت میری نظر میں اس وقت گھر میں میرے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا، تو ان آتی آوازوں سے میرا خوفزدہ ہونا جائز تھا۔ میں نے ہاتھ میں بیلن پکڑا اور آہستہ سے اپنا قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اگر میں ہمت نہ دکھاتی تو کیا کرتی؟ اس لیے میں دبے قدموں اندر کی طرف بڑھی اور آواز والے کمرے کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا، اندر کا منظر بہت عجیب تھا، جسے دیکھ کر میرے پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ میں آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ڈر اور خوف کی جگہ حیرانی اور پریشانی نے لے لی تھی، اور پھر اگلا منظر مزید دل کو دہلانے والا تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی مجھے دیکھتا میں جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس طرح کا منظر اگر کوئی اور دیکھتا تو اس کا بھی یہی ری ایکشن ہوتا۔ میں نے کچن میں آ کر گہرے سانس بھرے اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی اپنے گلے سے اتارا۔ میں غصے سے خود کو کنٹرول کرنے لگی، اور پھر مجھے یاد آیا کہ اگر ان لوگوں کو میرا سچ معلوم ہو گیا تو یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ سوچ آتے ہی میرے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ ماضی میں جو کام میں کر چکی تھی اس کا اگر میرے شوہر اور میرے سسرال میں سے کسی کو بھی معلوم پڑ جاتا تو وہ لمحہ نہ لگاتے مجھے گھر سے نکالنے میں، یا پھر میرا حال بھی۔ ایسا سوچتے ہی میری روح کانپ گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں میری ساس آئی تو اس نے میری آڑی اڑی رنگت دیکھ کر مجھے مشکوک انداز میں دیکھا، تو میں نے اس کی نظروں سے گھبرا کر اپنا رخ پھیرا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، تو اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں شرمندہ ہو گئی اور جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ آج میں نے گھر میں کتنا عجیب سا منظر دیکھا ہے۔ ایسا منظر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری نظروں کے سامنے ماضی کے واقعات گونجنے لگے، اور مجھے اب اس گھر میں خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی، مگر ہو نہیں پا رہی تھی۔ میرے سسرال والے میرے چچا کے سسرال والے بھی تھے، اور میرے چچا زاد اس گھر میں بہت اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے۔ میرے چچا چاچی کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہے تھے، تو انہوں نے میرے چچا زاد کو یہاں رہنے بھیج دیا۔ میرے دل میں آیا کہ میں منع کر دوں کہ ایسا نہ کریں، مگر اتنے لوگوں کی موجودگی میں کیسے میں اپنی چچی کو بتاتی کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ اگلے دن جب نہانے کے لیے جانے لگی تو جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا، اچانک سے وہاں میرا چچا زاد آ گیا، اور مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر واپس چلا گیا۔
उनके इस तरह करने से मुझे हैरत तो हुई कि उसने ऐसा क्यों किया, मगर फिर नज़रअंदाज करते मैं अपना नहाने चली गई। फिर अगले दिन भी यही हुआ तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर मैं नज़रअंदाज करते अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हो गई कि मुझे अपने घर जाना था। मैंने सोच लिया था कि आज हर हाल में मैं अपनी माँ को असलियत बता कर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने शौहर के साथ अपने घर आई तो वो बहुत अच्छे से मेरी माँ से बात करने लगी और मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे अपने शौहर पर बहुत गुस्सा आ रहा था और दुनिया पे भी। उन्होंने मेरे साथ कितनी ज्यादती की थी। मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे शौहर के जाते ही मैं रोने लगी तो मेरी अम्मी बहुत परेशान हुई और मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैंने इस घर में क्या देखा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मेरा चेहरा देखने लगी और फिर उन्होंने गुस्से से मुझे घूरा और कहा कि जो कुछ पहले कर चुकी हूँ अब दोबारा नहीं करने दूंगी। तुम झूठे इल्ज़ाम लगाकर गलत साबित नहीं कर सकती हो। मैंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है, आप देखें तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। मगर उन्होंने मुझे खामोश करवा दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी इस गलती की सज़ा मुझे सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। मेरा दम घुटने लगा था, दिल यहां से कहीं दूर भाग जाओ, मगर यह नामुमकिन सी बात थी। रात में सोने लेटी तो मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या मेरा हक नहीं था कि मुझे खूबसूरत साथी मिलता। मुझे अपने माजी याद आने लगा। मैं कॉलेज में थी जब सामने वाली दुकान का एक लड़का मुझे अच्छा लगा था। मैं इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई मुझ पे फिदा हो सकता है, मगर उस एक वाक़े ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक दिन मैं कॉलेज से घर आ रही थी कि अचानक रास्ते में मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन अब उसे कहीं से आवाज़ तो आ रही थी। मैं डर गई। मैंने जल्दी से आवाज़ की तरफ देखना शुरू किया और जो सामने का मंजर मुझे देखने को मिला उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं पागल हूं के सामने कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ। मेरे हवासों ने मेरा साथ देना छोड़ दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो दिन मेरे लिए सबसे बुरा दिन साबित हुआ। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। वैसे कोई पहली बार तो मेरे साथ नहीं हुआ था। मेरी जिंदगी तो बचपन से ही इन्हीं तमाशों में उलझी रही थी। भला आखिर कौन लड़की चाहेगी कि उसकी जिंदगी एक तमाशा बने। मुझे बचपन से लेकर आज तक बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मेरी मर्जी के बगैर किया गया। अपनी माँ की बातों से दिल बर्दाश्ता मैं अगले दिन ही वापस अपने ससुराल आ गई, क्योंकि मेरा दिल दुखा था बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी जल्दी घर आते देखकर कई सवालिया नज़रें मुझ पर पड़ी थी, मगर मैं नज़रअंदाज कर गई। मेरी माँ ने मुझे ठीक कहा था कि अगर मेरे माजी के बारे में मेरे ससुराल में किसी को पता चल जाता है तो क़यामत थी जो आ सकती थी। मैं अपनी सोचों में गुम अपने नहाने के वक्त हर नहाने की तैयारी करने लगी। मैंने जैसे गुस्लखाने में कदम रखा तो मुझे बाहर आहट महसूस हुई थी। मैंने सामने देखा तो मेरा चचा साथ भाई मौजूद था। उसने एक नज़र मुझे मुस्कुरा कर देखा और वापस चला गया। मैंने उसकी इस अजीब सी हरकत पर मुंह बनाया, क्योंकि मेरा चचा साथ भाई कभी ऐसा तो नहीं करता था और जहां तक मुझे याद था हमारे दरमियान इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी। वो मुझसे बहुत साल छोटा था। मैं नहाकर वापस आई तो वो बाहर ही बैठा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर अजीब पुरसरार सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे अजीब तो लगा, मगर मैं नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई, क्योंकि मेरा दिमाग पहले ही सोचों में गरक था। मैं क्या उसे जवाब देती। अगले दिन फिर मैंने नहाने के वक्त मेरा चचा साथ भाई आ गया और मुझे मुस्कुरा कर देखते वापस चला गया। उसकी इस हरकत को मैंने कुछ रोज़ तो बर्दाश्त किया, मगर फिर मेरी बर्दाश्त जवाब देने लगी। मैं किसी से शिकायत करती तो उल्टा सभी मुझे सुनाने लग जाते, मगर उसका रवैया भी तो अजीब था। वो उसी वक्त आता जब मुझे नहाना होता था और उसका मुझे मुस्कुरा कर देखना। मेरे दिल में कहीं ये खौफ भी आया कि शायद ये मेरे राज से वाकिफ हो गया है और ये सोचना था कि मेरे छक्के छूट गए। अगर ऐसा होता तो मेरी जिंदगी में तूफान आ जाता।
मैंने तो कभी अपने शौहर को इतनी अहमियत नहीं दी थी कि वो मेरे करीब आ सके। अगर मेरा राज सामने आ जाता तो वो कभी मेरी बात पर यकीन ना करते, बल्कि वो तो इस बात को सही मानते, क्योंकि मेरा रवैया ही उनके साथ ऐसा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। मुझे समझ नहीं आया था कि आखिर क्या करूं, जिंदगी भर ये मसले कैसे ख़त्म करूं। मेरा सोच सोच कर सर दुखने लगा था। मेरा दिल किया मैं कहीं गुम हो जाऊं और किसी को ना मिलूं। सबकी नज़रें मुझे चुभती महसूस हो रही थी। मेरा दिल किया इससे पहले मेरा कोई राज खोले मैं खुद ही सब कुछ करती हूँ, ऐसा कि सबके मुंह बंद हो जाएं। मगर इससे पहले मुझे मेरे चचाजाद भाई को ठीक करना था, जिसकी अजीब सी हरकतें मुझे मेरे ही घर में अजीब सा महसूस करवा रही थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी दिन मेरी पुरानी सहेली मेरे घर आ गई। वो मेरे सारे राजों से आगाह थी। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो उसने मुझे बहुत तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे बताया कि इस घर की और मेरे साथ एक अजीब सी बात हो रही है। मैं जब भी नहाने जाती हूँ उसी वक्त मेरा चचाजाद भाई मेरे कमरे में आता है, मुझे देखकर मुस्कुराकर चला जाता है और मैं बच्चा समझकर कुछ नहीं कहती। लेकिन मुझे शक हो गया है कि उसको कैसे पता चलता है कि मैं नहाने जा रही हूँ। मेरी बात पर उसने हैरत से मुझे देखा, जैसे मेरी बात पर यकीन ना आया हो, और फिर उसने अपनी जो राय दी वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी, क्योंकि मेरा चचाजाद मेरे भाइयों जैसा था, वो कैसे। खैर मेरी दोस्त ने मुझे इसका एक हल बताया और उस पर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन मैंने वैसा ही किया जैसे मेरी दोस्त ने कहा था। एक दिन घर में कोई नहीं था। उस दिन मैं बाथरूम गई और लाइट बंद करके कमरे में छुप गई। जब मेरा चचाजाद भाई ने आकर ऐसी हरकत की कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो, क्या ये वाकई मेरा चचाजाद था? मुझे यकीन करना बहुत मुश्किल था। मेरा दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। आखिर वो ये सब इतने वक्तों से कर रहा था और किसी को कैसे इस बात का इल्म नहीं हुआ। मैंने सोच लिया था कि उसे लाजमी रंगे हाथों पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ही अगले दिन मैं अपने मखसूस वक्त पर नहाने गई तो वो फौरन आ गया। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा। मेरे देखने पर उसे अजीब तो लगा, मगर वो बिना जाहिर किए बाहर चला गया। अब मैं अंदर गई और अंधेरा करके कमरे में आकर छुप गई और उसके आने का इंतज़ार करने लगी। और मेरा इंतज़ार रायगा नहीं किया। थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुला और वह अंदर दाखिल हुआ, और उसके अगले अमल से पहले ही मैंने लाइट ऑन कर दी, और ऐसा करने से वो एकदम घबरा गया और उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसने हैरत से मुझे देखा और उसकी शक्ल से साफ लग रहा था कि वो ऐसा सब कुछ सोच भी नहीं सकता था कि मैं अचानक से छापा मार दूंगी। उसका खौफ देखकर मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने आगे बढ़कर जो देखा वो मुझे हिला गया। मेरी लाइल्मी में इतना बड़ा काम हो रहा था। कल को किसी को खबर होती तो सारा इल्ज़ाम ही मेरे सर आता और मैं बेमौत मारी जाती। ये मेरे सगे चचा का बेटा था जो अपनी ही ताया की बेटी के साथ। मेरा दिमाग खोल उठा और मैं उसे मारने को आगे बढ़ी तो उसने मेरे हाथ थाम लिए और कहा कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मेरा राज सबको बता देगा, और फिर जो बदनामी होगी उसकी जिम्मेदार मैं सिर्फ होंगी। अपने तईं वो मुझे धमका रहा था, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं अगर डर गई तो वो मुझे और शेर हो जाएगा, और जो कुछ वो मुझसे छुप कर रहा है वो खुले आम करेगा, और फिर उसे कोई नहीं रोक सकेगा, मैं भी नहीं। मैंने उसे कहा कि जिसे बताना है जाकर बता दो, मुझे कोई खौफ नहीं, मगर अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। मुझे यूं बेखौफ और ख़तर देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मैंने अपने घर से बाहर उसे धक्का देकर निकाला और अब मुझे बेसब्री से अपने शौहर का इंतज़ार था। शाम होती वो घर आए तो मेरे चेहरे पर रकम परेशानी साफ महसूस कर गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ क्या हुआ है। तब मैंने फैसला किया कि आज मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब आगे जो होगा वो मेरा नसीब है। मैंने उन्हें सबसे पहले खाना दिया और कहा कि बात तवील है, हम आराम से बात करेंगे। और फिर आखिरकार वो लम्हा आ गया। मैंने उन्हें बताया कि उस दिन कमरे में जो कुछ हुआ, जो मैं देख चुकी हूँ। मेरा इतना ही कहना था कि उनकी रंगत उड़ गई, और मैं जानती थी कि जब मैं अपना राज उन्हें बताऊंगी तो मेरी हालत से उनकी मुख्तलिफ नहीं होगी। मेरी बात पर उन्होंने गहरा सांस लिया
उस दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी तो अजीब और गरीब आवाज़ों ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किया था, और जब मैंने अंदर आकर देखा, सामने ही मेरे शौहर अपने भाई यानी मेरे देवर को थामे उसे बहुत अजीब तरह से घूर रहे थे। उनका बेल्ट पर हाथ जाता देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि एक भाई अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर मैंने उन्हें अपने चचाजाद के मुतालिक भी सब बताया, क्योंकि कुछ भी छुपाना अब बेकार था। इतना तो मैं जान गई थी कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, झूठ छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सबके सामने आकर रहता है। इंसान को लगता है कि वो इस राज को छुपा लेगा। मेरी बात पर उन्होंने मुझे सर उठाकर देखा और कहा कि क्या राज है तुम्हारा। उनकी बात पर मैं थूक निगलते अपने लबों को मैंने तर्क किया और बताना शुरू किया कि मेरे कॉलेज के सामने एक लड़का दुकान पर बैठता था और सबको बहुत घूरता था। वो बेतहाशा खूबसूरत था कि कोई भी उसे पसंद कर ले। मुझे भी वो अच्छा लगता था, मगर मैंने कभी उससे बात नहीं की। एक दिन मैं कॉलेज से देर से निकली क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल था, और जब मैं आधे रास्ते पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि दोपहर का वक्त था और हर कोई गर्मी से परेशान अपने अपने घरों में कैद था। ऐसे में रास्ते में मुझे चीखने की आवाज़ आई तो मैं बहुत डर गई, और मैंने उस आवाज़ का ताक़ुब किया तो सामने का मंजर मुझे शर्मिंदगी से दो चार कर गया, क्योंकि वो लड़का एक लड़की के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने चीखना शुरू किया तो वो घबरा गया और भाग गया। उस लड़की की इज्जत उस गलीज आदमी से बच गई। इस बात का मैंने शुक्र अदा किया और उस लड़की को बाहिफाजत उसके घर पहुंचाया। उस दिन के बाद वो लड़का मुझे कभी नजर नहीं आया तो मैं मुतमईन हो गई कि अब कुछ गलत नहीं होगा। मगर एक दफ़ा मैं अपने कॉलेज से घर आ रही थी कि किसी ने मेरे चेहरे पर रुमाल रखकर मुझे बेहोश कर दिया, और जब मेरी आंख खुली तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने तो इतना कहकर मैं रुक गई तो मेरा शौहर मेरा चेहरा देखने लगा। मुझे उसी लड़के ने अगवा किया था, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने मुझे बताया कि उस दिन उस लड़की से वो बदतमीज़ी नहीं कर रहा था, बल्कि वो लड़की किसी गैंग की साथी थी और नकली ख़ानदान के साथ वहाँ रह रही थी। उसका काम लड़कियों को गलत कामों में लगाना था। इतना सुनकर मैंने उसे कहा कि मैं कैसे यकीन करूं, तो उसने मुझे कई सबूत दिखाए और मुझे कहा कि मैं उस लड़की को पकड़ने में उसकी मदद करूं। मैंने हामी भर ली क्योंकि गलती मेरी थी, लेकिन उस दिन ये बात मशहूर हो गई थी कि मैं अगवा हुई हूँ। किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और सब मुझे बुरा बोलने लगे। तो इल्ज़ामात से तंग आकर हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया और यहाँ आकर बस गए, और यहाँ आते ही मेरी आपसे शादी हो गई। सबको लगता है मैं अगवा हुई, मगर ऐसा नहीं था। मैं नहीं जानती उन लोगों में से कौन सही है कौन गलत, मगर मैं गलत नहीं थी। फिर मैंने बताया कि मेरे चचाजाद मेरे कमरे में कोई सामान रख रहा था और मुझे धमकाने लगा। तब मेरे शौहर ने मुझे बताया कि उस दिन मैं अपने भाई को इसीलिए मार रहा था कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। वो चोरी का सामान हमारे स्टोर रूम में और बेड के नीचे छुपाता था और अगले दिन हमारे खबर होने से पहले पहले गायब कर देता था। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो वो घबरा गया और झूठ पर झूठ बोलने लगा, और तुमने गलत देखा और मुझे गलत समझ लिया। मेरे शौहर को यकीन था कि उनका भाई और मेरा चचाजाद आपस में मिले हुए हैं। उनकी बात पर मैंने उनका चेहरा देखा तो उन्होंने मुझे इशारे से पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि आपने कुछ बोला नहीं मेरे अगवा होने पर। तब उनके जवाब ने मेरे दिल में उनकी इज्जत एकदम बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि मियाँ बीवी का रिश्ता बनता ही एतबार पर है। जब एक दूसरे पर एतबार नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी कैसे गुजारा करेंगे। उनकी बात में मैं अपने पिछले रवैये पर शर्मिंदा हो गई। हम लड़कियां अक्सर शक्लो सूरत पर मर मिटती हैं, हमें इंसान का बातिल नज़र नहीं आता। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और फिर अगले दिन जब मेरे चचाजाद मुझे धमकाने आया तो मेरे शौहर ने उसे आकर पकड़ लिया। वो तो आदत के मुताबिक मुझे धमकाने लगा था और मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाने का कोशिश करने लगा। शोर की आवाज़ सुनकर सब वहाँ आ गए और तमाशा देखने लगे। मेरे चचाजाद के इल्ज़ाम सुनकर सब मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे कि मैं एकदम शर्मिंदा हो गई। मेरे चचाजाद को नशे की लत थी। वो मेरे देवर के साथ छोटी छोटी चोरियां करता था। जब मेरा देवर पकड़ा गया तो उसने चोरी से तौबा कर ली और मेरे देवर को शौहर ने मसरूफ़ कर दिया ताकि वो बुरी लत से बच जाए।
वो सुबह स्कूल, मदरसे और फिर ट्यूशन जाता और बाकी का वक्त और मेरे शौहर अपने बाप के साथ गुजारता। वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। अगर वो उसे मार पीट करते, उसके हाल पर छोड़ देते तो वो बेराह रवी का शिकार हो जाता, मगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और उसे वक्त रहते संभाल लिया। मगर मेरे चचा चची अपनी मस्तियों में मगन अपने बच्चों को दूसरों के दर पर छोड़ गए और उसे तो मौका मिल गया खुलकर अपना काम करने का। और उसे ये मौका मेरी लापरवाही ने भी दिया। वो मेरा चचा ज़ात था, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उस पर नज़र रखती, और ये काम मेरे माँ बाप का भी था कि भले वो अपने ननियाल में था मगर उसकी खबरगिरी करते। गलती हम सब की थी। इसी वजह से वो बेखौफ व ख़तर हर बुरा काम करने लगा। हम उससे इतने गाफिल थे कि वो नशा करता था और हमें खबर भी ना हुई कि 14 साल की उम्र में वो इतने बुरे कामों में लग जाएगा। मेरे शौहर ने उसे पास बिठाकर बहुत समझाया तो उसने बताया कि वो पढ़ना चाहता था मगर उसके माँ बाप के पास उसकी फ़ीस के पैसे नहीं होते थे। दुनिया की चीज़ें उनके पास आ जाती थी सिवाय उसकी फ़ीस के। छोटी छोटी ज़रूरतों को तरसते वो चोरी करने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ खुल गया। गलत लोगों की सोहबत मिली तो वो नशा करने लगा। मेरे शौहर ने उसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया। वालिदैन को ये बात समझनी चाहिए कि औलाद को ऐसे ही शुतर बेमुहार नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उस पर हर उम्र में नज़र रखनी चाहिए ताकि वो गलत सोहबत में ना पड़े। उन पर एतबार करें। एतबार ही सब कुछ होता है। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझ पर एतबार नहीं किया था, लेकिन मेरे शौहर ने मुझ पर किया। एतबार ही सब कुछ होता है। हर रिश्ते में सुनी सुनाई से ज़्यादा आप पहले तस्दीक करें। इससे आप कई मुसीबतों से बच सकते हैं और इससे कई रिश्ते भी बच सकते हैं और सब कुछ ठीक हो सकता है। अपने बच्चों पर नज़र रखें ताकि वो गलत राह में ना पड़े, क्योंकि अगर आप बच्चों को ऐसा माहौल देंगे तो वो समाज में बढ़ती उन बुराइयों से बचे रहेंगे। उन्हें अच्छे बुरे का फ़र्क सिखाएं और उनको वक्त दें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन कर लीजिए और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।